Hey my dear lovely students, very good morning to all of you. I welcome you all in today's video session. As you all know that in the last two videos classes, we have completed our chapter 13, that is lines and angles. So in the today's video, we will start on with a new chapter, that is chapter 14, properties of parallel lines. I have called many of the students and I have found that they are not watching the video regularly and not even they are sending me their homework. So please do solve all the questions and send me your homework the same day you get the homework, and watch the video regularly so that you can better understand each topic clearly. And this will definitely help you in your upcoming examinations. So without wasting any more time, let's start our today's video, that is chapter 14, properties of parallel lines. Chapter 14, properties of parallel lines. Properties of parallel lines. So first of all, we will understand that what is parallel line. I hope that you all would be knowing that what is parallel line. The lines which do not meet each other What are parallel lines? The lines which do not meet each other are known as parallel lines. आप सब लोगों को ये मालूम है कि वैसे लाइंस जो आपस में नहीं मिलते हैं उनको बोलते हैं parallel line. I can take an example. Suppose this is a line L and again we have a line M and both of these lines are parallel. So अगर हम लोग उसको किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं, they both lines will not meet each other. So these are the pair of parallel lines. ऐसे और भी हो सकते हैं. इन दोनों के parallel एक और लाइन N मान लेते हैं. ये तीनों आपस में क्या है? पैरेलल. ये डेफिनेशन आप लोग पढ़े हैं. बस एक चीज which I want to include in this, the lines which do not या who do not meet each other are known as parallel lines, and the distance between them, ये ज्यादा important है, between them is always same. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तभी स्ट्रेट लाइन मिलेगा 90 डिग्री. इन यहाँ पर D1 और इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ये भी 90 डिग्री और ये भी कितना आएगा D1. जो यहाँ पर वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ पर आएगा. सेम कंडीशन विल बी फॉलोड फॉर दिस लाइन ऑल्सो 90 डिग्री. एंड इफ these three lines are parallel, this means that the distance between all of these three lines will always be equal. So this is an important concept of parallel line. वैसे lines जो आपस में कभी नहीं मिलते हैं उनको बोलते हैं parallel line. And the most important concept is that the distance between them will always be the same. उनके बीच का distance भी हमेशा क्या होगा? Same. Okay? अब parallel line के बाद एक और important concept आता है transversal. Transversal क्या है? A simple definition for transversal is a line which intersect two or more lines at distinct points are known as okay, because it is singular. What is transversal? A line which intersect two or more lines at distinct points is known as transversal. वैसा लाइन जो पैरेलल लाइन को कट करता हो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल. Suppose this is a parallel line L and this is a parallel line M and it is being cut by a transversal T. वैसा लाइन जो ट्रांसवर्सल को कट करता है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स. तो एक इस पॉइंट पे कट किया और एक इस पॉइंट पे कट किया. तो जो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करता है पैरेलल लाइन को, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल.
Okay, what is transversal? A line which intersects two or more lines at distinct points is known as transversal. इसको transversal, ये दोनों लाइन आपस में parallel थे. We can put a symbol over here, and this is a transversal. Why it is transversal? Because it is cutting both of the parallel lines. अब जब भी कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को कट करेंगे तो डिफरेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं. ये फर्स्ट एंगल मान, इसको 2, इसको 3 मान लेते हैं, ये 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8. टोटल 8 एंगल्स बनेंगे. अब इन 8 एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, हमको उसी चीज को पढ़ना है इस टॉपिक में, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस में. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वही है. जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो एंगल्स बनते हैं, इन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है हमको वो पढ़ना है. ओके, सो लेट मी पुट अ हेडिंग ओवर हियर, दैट इज एंगल्स formed when a transversal cuts two parallel lines. Angles formed when a transversal cuts two parallel lines. कौन कौन से एंगल जो बन रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है when a transversal is cut. Okay, so let me draw a figure once again. Okay, this L and M, so I can write L parallel to M and T is a transversal. क्या क्या लिख दिया मैंने, दो लाइन पैरेलल है, एल और एम आपस में पैरेलल लाइंस हैं, और इसमें टी क्या है, ट्रांसवर्सल है. तो कितने एंगल्स बनेंगे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंगल्स बनेंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन these 8 angles. The first one which we are going to study is corresponding angle. सबसे फर्स्ट में जो हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे वह है corresponding angle. corresponding angles बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा. कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now you have to find the relationship between all of these angles. Okay. इन सारे एंगल्स के बीच रिलेशनशिप निकालना है तो सबसे फर्स्ट में क्या आता है मेरे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की क्या डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑन द सेम साइड of transversal line. क्या होंगे corresponding angles, angles on the same side of transversal line, इनको बोलते हैं corresponding angle. And the pair of corresponding angles are equal. Okay, angles on the same side of transversal line and the pair of corresponding angles are equal. तो वैसे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है, कहने का मतलब क्या, ये एल और एम आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड. ओके, सबसे पहले अगर हम राइट साइड देखें तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 5. ये फर्स्ट पेयर. इसको पहचानेंगे कैसे, बहुत आसान है. सबसे पहले आपको क्या बताया कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, तो सेम साइड यानी कि राइट और लेफ्ट, तो 1 और 5 जो है वो दोनों राइट में ही है. आप बोलिएगा सर 4 भी तो है और 8 भी तो है, इसको क्यों नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा सेकंड में 4 और एंगल 8. अब हम 1 और 5 को ही क्यों लिए और 4 और 8 को ही क्यों लिए, सबसे पहले 1 और 4 को क्यों नहीं ले लिए, इसके पीछे एक रीजन ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो होते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, लेकिन इस पैरेलल लाइन एल के ऊपर क्या है, 1, तो यहाँ पर भी इस पैरेलल लाइन एम के ऊपर क्या है, 5, तो 1 और 5. ओके, फर्स्ट में. सेकंड में लाइन एल के नीचे क्या है, 4, यहाँ लाइन एम के नीचे क्या है, 8, तो क्या हो जाएगा 4 और 8. एंगल 1 एंगल 5 साथ में और एंगल 4 और एंगल 8. इसी तरीके से लेफ्ट में आएंगे तो लाइन के ऊपर क्या है, 2
2 किसका होगा, 6 का, और एक और क्या हो जाएगा, लाइन के नीचे 3, और एक और क्या हो जाएगा, लाइन के नीचे 7, एंगल 3 और एंगल 7। तो दीज आर ओनली 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। जब भी 8 एंगल्स बनेंगे तो यही 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। आपको एकदम याद कर लेना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल का डेफिनेशन क्या कहता है। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल एंड इट्स पेयर विल ऑलवेज बी इक्वल। तो सेम साइड यानी कि आइदर लेफ्ट और राइट में देखेंगे। तो सबसे पहले राइट में मैंने देखा, तो राइट में क्या था, 1 का पेयर कौन होगा, 5 क्यों होगा, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन L के ऊपर 1 और लाइन M के ऊपर 5, तो 1 और 5। फिर लाइन L के नीचे 4 और लाइन M के नीचे 8, तो 4 और 8। लेफ्ट में देखेंगे तो लाइन L के ऊपर 2, लाइन M के ऊपर 6, तो 2 और 6 साथ में, और फिर L के नीचे 3 और M के नीचे 7, तो 3 और 7 साथ में। सो दीज आर 4 पेयर ऑफ corresponding angles and they are equal। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये हुआ मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल सबसे फर्स्ट। आई होप इट इज क्लियर, किसी को प्रॉब्लम ना होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो 1 और 5 पेयर हैं, जब पेयर है तो दे विल बी इक्वल। सो 1 इक्वल टू 5 लिखा हुआ भी है, एंड द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहले आपको पेयर फाइंड करना है, तो 4 पेयर बनेगा, तो 1 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू 8, 2 इक्वल टू 6 एंड 3 इक्वल टू 7। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद हम लोग पढ़ते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद सेकंड पे आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? द एंगल्स which are in between of two parallel lines are called alternate interior angles। नॉट अल्टरनेट, अल्टरनेट हटा दीजिए, उनको क्या बोलते हैं, इंटरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ओके, एंड द अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, क्या कहता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? द एंगल्स विच आर इन बिटवीन ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। फिर से देखते हैं, एक लाइन L था और एक लाइन M था, एक ट्रांसवर्सल कट किया, 8 एंगल्स बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बनते थे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोलता है? द एंगल विच आर इन बिटवीन ऑफ टू पैरेलल, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल है उनको क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स। और ऐसे भी इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर, और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? लाइन L और M बाहर है, 1 और 2 को तो छोड़ देंगे, और M के बाहर 7 और 8 दोनों को छोड़ देंगे। तो अंदर कौन कौन बचा? 3 4 5 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये सारे क्या हैं? इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स है ये? इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक छोड़कर। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर, यानी कि मंडे के बाद ट्यूसडे को छोड़ देना है, क्या लेना है? वेडनेसडे। फिर वेडनेसडे के बाद थर्सडे को छोड़ देना है, क्या लेना है? फ्राइडे। सिमिलरली ट्यूसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद सैटरडे। जैसा मेरा वीडियो आता है, आप लोग को याद होगा, एक ट्यूसडे को, फिर थर्सडे को, फिर सैटरडे को, फिर एक दिन संडे को आप लोगों के लिए बोनस आता है। ओके, तो ऐसे को इसको बोलते हैं अल्टरनेट। तो मेरे पास 4 एंगल्स हैं, 3 4 5 6। इसमें अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर। अगर हम 3 4 5 6 की बात करें तो 3 का अल्टरनेट कौन होगा? बगल वाले को छोड़ दीजिए, या फिर इसको छोड़ दीजिए, किसी को भी छोड़ दीजिए। अगर हम इसको छोड़ दें तो कहाँ पहुंच जाएंगे? 5 के पास।
अगर इसको छोड़ दे तो अभी कहाँ पहुंचेंगे 5 के पास। अगर 4 को लें तो बगल वाले को 5 को छोड़ देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे 6 के पास। अगर 4 को लें 3 को छोड़ दे तो अभी कहाँ पहुंचेंगे 6। यानी कि क्रॉस बन रहा है, एक क्रॉस पैटर्न बन रहा है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, तो 3 का 4 छोड़ देंगे, क्या मिल गया 5। 4 लेंगे तो बगल वाला 3 या 5 कुछ भी छोड़ दीजिए, 4 5 छोड़ देंगे तो क्या बच गया 6। ओके, क्रॉस पैटर्न आपको याद करना है। तो 4 का 6 और 3 का 5 और ये आपस में क्या होंगे इक्वल। समझ में आ गया सबको। चलिए अब एक और देखते हैं नेक्स्ट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, वहां पर बात कर रहे थे इंटीरियर को, तो हम लोग 1 2 7 और 8 को छोड़ दिए थे। लेकिन अब किसका बात करेंगे एक्सटीरियर का। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द एंगल या द एंगल्स विच लाइज outside the parallel line, outside the two parallel line are known as exterior angle। उनको क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और ये भी द पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल। तो एक्सटीरियर एंगल का पेयर क्या होगा, ये भी क्या होगा आपस में इक्वल। तो अब हम लोग एक्सटीरियर का बात करते थे, इंटीरियर 3 4 5 6 को छोड़ दीजिए, बचा क्या 1 2 7 और 8। तो क्रॉस वाला पैटर्न याद है ना, तो 1 के बाद 2 को छोड़ देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे 7, 2 के बाद 1 को छोड़ देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे 8। तो क्रॉस वाला पैटर्न याद है, 1 का क्या हो जाएगा 7 और 2 का क्या हो जाएगा 8। तो सबसे पहले अगर कोई पूछेगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन है, सिर्फ ये बताइए। तो एक्सटीरियर एंगल्स हो गया एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स। ये सारे कैसे एंगल्स है एक्सटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट की बात हो रही है, यानी कि एक छोड़कर आपको कौन सा पैटर्न याद करने के लिए बोला था, क्रॉस पैटर्न। तो 1 का क्या होगा 7 और 2 का क्या होगा 8। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग आते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। बस ये लास्ट है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन L एक लाइन M और इन दोनों को कट कर रहा है एक ट्रांसवर्सल T। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल पे। इसका एग्जीक्यूटिव एक्सटीरियर नहीं होता है, सिर्फ इंटीरियर होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है क्या। हमको नहीं लगता है कि आपको इसमें कुछ भी चीज समझाने की जरूरत है, ना डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको इंटीरियर एंगल बता दिया, वही कंडीशन इसमें भी लगेगा। लेकिन कंसेक्यूटिव का मतलब क्या, लगातार, यानी कि बगल वाला। यहाँ पर लगातार तो नंबरिंग लिखे है ना, तो लगातार तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, यानी कि जस्ट बगल वाले, एडजेसेंट टाइप के। ओके, तो क्या क्या कह सकते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। पहले ये बताइए कि इंटीरियर एंगल कौन कौन है। 3 4 5 6 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, ये सारे कैसे एंगल है इंटीरियर एंगल्स।
अब कंसेक्यूटिव बोल रहा है यानी कि लगातार, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आपको ले लेना है। 3 का क्या हो जाएगा 6, 3 का 4 नहीं, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा डेफिनेटली, लेकिन लीनियर पेयर से आपको कंसेक्यूटिव लेना है। तो 3 का क्या हो जाएगा 6 और 4 का क्या होगा 5। तो एंगल 3 और एंगल 6, याद रखिएगा मैंने इक्वल का साइन नहीं दिया है क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। एंगल 3 और एंगल 6 ये एक पेयर और दूसरा पेयर एंगल 4 और एंगल 5, ये 2 पेयर हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के। अब कंडीशन, द सम ऑफ पेयर ऑफ consecutive interior angle is 180 डिग्री। ये दोनों आपस में 3 जैसे हम लोग ऊपर वाले में कर रहे थे 1 = 7 2 = 3, आपस में इक्वल नहीं होंगे, इनका सम होगा 180 डिग्री, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया है। तो कौन कौन से होंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर 3 and 6 और 4 and 5, तो इनका सम कितना होगा 180। तो क्या लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। आप देखिए ये नाम बहुत बड़ा लग रहा है, इसीलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CO, को इंटीरियर एंगल्स। आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को ही हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो इतना सारा ही कंसेप्ट था पैरालाइंस में। अब इसी पे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो देखिए। मान लीजिए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, given L parallel to M and T is transversal such that angle 1 is equal to 135 degree. Find angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, एंगल 7, एंगल 8। सारा एंगल निकालना है। बस एक एंगल दिया हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 135 डिग्री। फिगर ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। एक लाइन इन दोनों के ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये टी ट्रांसवर्सल, ये लाइन एल और एम आपस में पैरेलल। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग लिखने में गलती नहीं करिएगा। 1 के बगल में तो आप यहाँ भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे रास्ता मिलेगा वैसे। ओके, कैसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 2 2 के नीचे 3 4 5 6 7 8, 7 8 क्रॉस नहीं करते हैं, नंबरिंग को क्रॉस नहीं करते हैं। एंगल 1 कितना दिया हुआ है 135 डिग्री। एंगल 1 कितना है 135 डिग्री। अब आपको बाकी एंगल्स निकालना है, कैसे निकालिएगा आप ये बताइए। बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का, मैंने आपको बहुत सारा तरीका पता। पिछले क्लास में भी लाइन्स एंड एंगल्स में आपको 2 प्रॉपर्टी बताए थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना इजी है। चलिए निकालते हैं। एंगल 1 अगर दिया हुआ है बच्चा 135 डिग्री, तो क्या 2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एल अगर एक पैरेलल लाइन है एल और एम, तो एल एक स्ट्रेट लाइन तो जरूरी है होगा। अगर एक एल स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में आइए। एंगल 1 प्लस एंगल लीनियर पेयर, तो एंगल 1 कितना है 135 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। 10 में से 5 गया 5, 17 में से 13 गया 4, 45। तो एंगल 2 कितना आ गया 45 डिग्री। क्लियर है। अब हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमने निकाल लिया, सिर्फ अभी एंगल 2 निकला है, निकालना है 3 4 5 6 7 8। अब बताइए क्या एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है? लिख देंगे
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 ध्यान से देखिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल 1 का कितना था? 135 डिग्री। तो 3 का भी कितना आ गया? 135 डिग्री। फर्स्ट ये 1 था, 2, इसको 3 कर देते हैं, इसको 3, इसको सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट तो दिया हुआ था ऑलरेडी। अब एंगल 3 आ गया। एंगल 4 भी निकाल सकते हैं, एंगल 4 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जितना एंगल 2 उतना ही एंगल 4। फिर से रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या लिख देंगे? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप बताइए एंगल 2 कितना है? अभी जस्ट निकाले हैं। एंगल 2 45, तो 4 भी कितना होगा? 45। एंगल 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको फोर्थ कर सकते हैं। वेरी गुड। जब फोर्थ निकल गया बच्चे तो क्या सिक्स्थ निकल जाएगा? अभी आपको जस्ट पढ़ाए हैं, याद करिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 4 इज इक्वल टू 6 लिख देते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 4 कितना आया है? 45। तो एंगल 6 भी कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों इक्वल है, तो एंगल 6 भी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। इसको हम लोग क्या कर देते हैं? 5th नंबर, 4 के बाद 5 नंबर। जब 6 निकल गया बच्चा तो क्या इसी तरीके से 5 भी निकाल सकते हैं? 5 किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल। जितना 3 उतना ही 5। रीजन क्या देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आप रीजन नहीं देते हैं तो हर एक क्वेश्चन गलत होगा। तो 5 निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 कितना आ चुका है? 135। तो एंगल 5 भी कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। 5th था ये, 6th। अब बताइए, जब 5 निकल गया तो 7 ही निकल जाएगा। 7 किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो लिख देंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 5 है 135, तो एंगल 7 भी कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। 7 नंबर। वेरी गुड। जब 7 निकल गया तो 8 भी निकल जाएगा। 8 किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल। तो लिख देंगे एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। और एंगल 6 कितना था? 45 डिग्री। तो एंगल 8 इज इक्वल टू कितना? 45। यहाँ पे भी रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 8 भी कितना आ गया? 45 डिग्री। 5th 7 और फिर 8। क्लियर? तो सारा एंगल निकल के ध्यान से देखिए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। हमको यही फाइंड आउट करना था। बहुत आसानी से निकल जाएगा। जरूरी नहीं कि हम जिस प्रोसेस से बनाए हैं आप भी उसी प्रोसेस से बनाइए। कुछ भी रीजन लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, वो सही होना चाहिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर कहीं पे भी डाउट है तो मैसेज मी, आई विल मेक अ वीडियो ओवर दैट टॉपिक। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।